have seen the vector error correction model or the error correction model in detail. Now, what I'm going to do is that I'm going to show you that how the different tests that have already been explained, and you have seen various steps how you can perform these tests in eViews. I'm going to just give you an example how these tests can be run in eViews myself. Okay, so let me open up the eViews software. Okay, here I have opened the eViews software, and all right, can you all see the eViews software screen? Hello, can you all see the eViews screen? Yes, sir. Okay, all right, so let's go with the first step. Okay, first we are going to open our data file on my desktop, which is the same folder that I will be sharing on the Dropbox. Okay, so here this is the file time series modeling dataset. I will select that. I'll click open. Okay, then I will just select the default options. Next, next. The last option would be finish. And then when it will ask link imported series and alpha objects to external source, I will select no. ठीक है जी. अच्छा, अब हमने जो पहला स्टेप जो हमने लेना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है जनाब, दैट वी आर गोइंग टू रन द रिग्रेशन. ओके, अच्छा, अब रिग्रेशन का रन करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, वी विल click quick, and then we say select estimate equation. Okay, so follow me along. Okay, so quick, and then let's go estimate equation. Okay, and this is what we are going to type in it. Okay, these are our variable. Okay, real money demand, RMD, the intercept C, the real GDP, and then the INT. Okay, so when I click OK, okay, these are the results that we see. Okay, now, so I'm right now I'm just going to run all the test. Okay, and then I will go back to the chapter file in which all these results are already present, and then I am going to tell you that how we can actually interpret them. Okay, here I just want to show you that how this test can be run using the data that I have provided to you. Okay, so once we have run the regression equation, okay, the second step would be that we are going to save the residuals, okay, or the error terms in eViews. Okay, okay, so how we will do that? Okay, so for that we will have to go to the quick and then generate series. ठीक है, अच्छा, अब आपको करना जो है वो ये होगा दैट अगर यहाँ पे जो है अगर आप डेटा फाइल देखें, ठीक है, तो डेटा फाइल में जो है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे जो है ये रेजिट का ऑप्शन जो है ऑलरेडी नजर आ रहा है. ओके, लेट मी डिलीट दैट सो दैट आई कैन रिक्रिएट इट फॉर यू. Okay, or that cannot be deleted. Okay, anyways, so let me share with you the step file so that you can understand the step that when you get the data, you can do that. Okay, okay, so in this word file, if you can see that when you are going to run the regression, okay, you will run the regression as I explained to you, quick, and then estimate equation. Okay, now when we are going to generate the series, okay, the step would be that first you will select quick and then you will select generate series. So quick and then generate series. Okay, now here you will type uh, u is equals to resin. Okay, and then you will click enter. Okay, now we can see that we have obtained a variable called u that contains the values of the residual. Okay, now once we do that, what we are going to do, we are going to double click on this u. Okay, we're going to double click on this u. Now when we double click on this u, it is going to open up the data that is contained in this u, which सर is हमारे actually पास तो ये वाली स्टेप्स वाली आ रही है. कौन सी.
ओके, स्टेप्स अभी आप मैं आपको जो है वो दोबारा, असल में ये प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि ये जूम में कि आपने जो पहले जो स्क्रीन शेयर कर ली होती है ना, वो उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो है स्विच करनी पड़ती है। स्विच करता हूँ, एक सेकंड रुक जाए आप। शेयरिंग, न्यू शेयर ईव्यूज, ये आ गया आपके पास, ईव्यू नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा अब हमने ये यू जो हमने क्रिएट किया था, इस यू पे हमने डबल क्लिक किया, ठीक है। अब ये हमारे पास डेटा फाइल आ गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है जनाब कि हमने इसका जो है ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। तो वी विल गो एंड विल क्लिक व्यू एंड देन ग्राफ, ओके, व्यू ग्राफ, ठीक है। और अब हमें ग्राफ क्रिएट करना है, वैसे ही ग्राफ है हमने लास्ट सेशन में जब स्टेशनरी और सीरीज की बात कर रहे थे तो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। सो ग्राफ एलिमेंट्स, लाइन चार्ट एंड देन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना कि हमारे पास ये जो रेजिड्यूल्स है, ठीक है, इसका जो है वो हमारे पास ये चार्ट हमारे पास अपीयर हो गया है, ठीक है। राइट नाउ जस्ट लुक एट दीज चार्ट्स एंड दी वेरियस इक्वेशन आई एम क्रिएटिंग, फॉलो माय स्टेप्स, ओके। पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जब आप ईव्यूज के टेस्ट रन करें, तमाम चीजें रन करें तो आपके पास जो है स्टेप्स जो है सारे सारे मौजूद हो, ठीक है। ये स्टेप्स जो है ये हमने वीडियो में देख लिए हैं, एक और मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ बेस्ड ऑन द डेटा आई विल प्रोवाइडिंग टू यू सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है जी। तो ये सेकंड स्टेप में जो है बेसिकली व्हाट वी हैव डन, हमने जो रेजिड्यूल्स का जो डेटा जो हमने यू वेरिएबल के अंदर जो है सेव किया था, उसका जो है वो हमने ग्राफ जो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन अभी मैं आपको शो करूंगा, ओके। इसके बाद जनाब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने जो है वो इस ये जो रेजिड्यूज की वैल्यूज हैं इनके ऊपर हमने जो है वो कोरलोग्राम टेस्ट रन करना है। रिमेंबर कि ये जो कोरलोग्राम टेस्ट और ये जितनी भी हम चीजें रन कर रहे हैं ये इसलिए रन कर रहे हैं ताकि ये एस्टैब्लिश कर सके कि सीरीज जो है वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। तो अब इन रेजिड्यूज का जो है अगर आपको कोरलोग्राम जो है अगर आपको टेस्ट करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन व्यू कोरलोग्राम, ठीक है। लेट्स गो बैक, ओके जी, व्यू एंड देन वेयर इट इज कोरलोग्राम, ठीक है। अब जब आप कोरलोग्राम पे आप जाएंगे तो कोरलोग्राम पे जाने के बाद जो है वो अब आपने सेलेक्ट करना है कोरलोग्राम ऑफ दी, ठीक है। तो ये लेवल पर तो ऑलरेडी जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कोरलोग्राम ऑफ लेवल, क्लिक ओके। सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट, okay. Now once we have created the correlogram in the step number 3, these are the same results as of the chapter 5 that I'm showing to you, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जनाब कि ये अभी हमने जो जितने भी टेस्ट रन किए थे, ठीक है, कि हमने रिग्रेशन रन किया, हमने रिजल्ट्स जो है उनको जो है वो रिजल्ट की सीरीज जनरेट की, ठीक है। रिजल्ट की सीरीज जनरेट करने के बाद जो है वो हमने इसका जो है ग्राफ जनरेट किया। इस ग्राफ को जनरेट करने के बाद जो है वो हमने इसी रेजिडुअल सीरीज का जो है वो हमने एक कोरलोग्राम जनरेट किया। ये तमाम के तमाम जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको डॉक्टर तहसीन ने जो है वो एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। पर्पस क्या है, इस चीज़ को चेक करना है कि जो ओरिजिनल सीरीज है, ठीक है, और जो रेजिडुअल्स हैं, ठीक है, उन दोनों में जो है वो कौन सी जो है वो स्टेशनरी है, कौन सी सीरीज जो है नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। सो रिमेंबर कि जो लास्ट ये जो डिस्कशन था जिसमें हमने स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डिस्कस की थी, तो वहाँ पे डॉक्टर तहसीन ने उसको जो है वो सिंप्लीफाई किया, कहा था कि जी 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो जो बुक थी जिसको कंसल्ट कर रहे थे, बुक में जो है उन्होंने 3 स्टेप्स को फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड में जो है डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो अब अगर हम जो है वो अभी हमने जो परफॉर्म किया है इनफॉर्मल टेस्ट है कि हमने रिग्रेशन की, हमने रेजिड्यूज को देखा, इसके बाद हमने कोरलोग्राम को किया, हमने ग्राफ्स के थ्रू इसको चेक किया है, ठीक है। जो फॉर्मल मेथड जो है वो क्या होता है ना, ऑगमेंटेड डिकी फुलर एडीएफ टेस्ट, राइट। अब ये ऑगमेंटेड डिकी फुलर रेजिडुअल टेस्ट है, इसको हम इसको जो है हम किस पर रन करेंगे, इसको हम करेंगे रेजिडुअल सीरीज पे। रिमेंबर कि हमने जो अल्टीमेटली जो टेस्ट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वो टेस्ट है एरर करेक्शन मॉडल, ठीक है। तो ये हम उसके लिए जो है तमाम चीजें जो है वो चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीरीज है, ठीक है, सीरीज जो है वो लेवल पर स्टेशनरी है या फर्स्ट के ऊपर जो स्टेशनरी है। तो अब जब हम ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट को जो हम रन करेंगे, ठीक है, तो पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि जनाब कि हमने ये जो रेजोल्यूशन जो सीरीज है यू इसको जब ओपन करना होगा, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू रन यूनिट टेस्ट, ओके। सो इफ यू गो बैक, ऑलराइट, व्यू, पहले व्यू पे क्लिक करेंगे, ये सीरीज जो है यू ओपन है, मैंने व्यू पे क्लिक किया, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है ये रेजिडुअल का एक्चुअल डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्लिक करना है व्यू और इसके बाद मैंने जाना है जनाब यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है। तो व्यू, इसके बाद मैंने कहा गया यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है। अब यूनिट रूट टेस्ट में जो है वो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो इसके स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं उन्हीं को आपने सेलेक्ट करना है। ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट आप रन करेंगे, ठीक है। यू विल रन द टेस्ट फॉर यूनिट रूट इन लेवल, ठीक है। और इसके बाद इंक्लूड इन टेस्ट इक्वेशन इंटरसेप्ट, व्हेन यू क्लिक ओके, these are the results that you will see, okay. So we have performed the augmented Dickey Fuller test in this step, okay. What we are going to do next, अब जब हमने तमाम के तमाम काम कर लिया, ठीक है,
तो हमारे पास जो है अभी हम रिजल्ट्स को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एनफ कंडीशंस जो है मौजूद हैं, ठीक है, एनफ हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि हम एरर करेक्शन मॉडल को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब अपना आपने एरर करेक्शन मॉडल रन करना, एरर करेक्शन मॉडल को रन करने के स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो ये जनाब कि आपने जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो आपने रन करनी है, ठीक है। तो लेट मी क्लोज दैट, ओके, यस, ऑलराइट, ओके जी। तो फर्स्ट स्टेप, we are going to run the regression again, okay. So what we will do, we will go to uh, quick and then estimation again, ठीक है। तो quick, इसके बाद जनाब वेट को एस्टिमेट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जनाब ये वो वेरिएबल्स देंगे जो कि हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, रन, ओके। सो वी गॉट द रिग्रेशन इक्वेशन, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर गोइंग टू जनरेट द एरर करेक्शन टर्म डेटा। अच्छा, जो हमारी बुक है, हमारी बुक में जो है वो इस एरर जिसको डॉक्टर तहसीन ने अपने जो वीडियो में एरर करेक्शन टर्म कहा है, आपकी जो बुक जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो बुक जो है वो उस पर्टिकुलर जो एरर टर्म है उसको रेफर कर रही है ECM के नाम से, एरर करेक्शन मॉडल के नाम से। उन्होंने उसको जो है वो ECT का नाम जो है नहीं दिया है। तो वीडियो में जो है वो डॉक्टर तहसीन जावेद ने जिस चीज़ को ECT कहा है उसको बुक चैप्टर में जो है वो ECM कहा गया है, ठीक है। सो काइंडली ये बात को जो है वो आप जहन में रखिएगा, ठीक है। सो वंस वी हैव रन द रिग्रेशन, द नेक्स्ट स्टेप इज that we are going to generate this error correction data, that is the residual data, okay. So we will go click quick and then generate series, okay, quick, then generate series, and here we will type ECM is equal to result. अब देखिए यहाँ पर अगर मैं चाहूँ मैं इस ECM को जो है वो इसी कर सकता हूँ ताकि जो डॉक्टर तहसीन ने डिस्कशन किया था और जो बुक डिस्कशन कर रही है वो सेम हो जाए, लेकिन उस सूरत में जब हमें बुक चैप्टर जगह जगह जो है वो फिर ECM को ECT करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई डेलिबरेटली आई एम नॉट चेंजिंग दिस ECM टू ECT, ठीक है। उसको मैं एक सो in order to the run the ECM model, okay, once again what we will do is that we will open up the we will double click on this ECM, okay. Now the series is available, okay. Now what we are going to do is that first what we'll check is the short run equilibrium, ठीक है। तो short run equilibrium में जो है वो steps जो है वो डॉक्टर तहसीन ने आपको शो किए थे। अभी मैं आपको अपनी जो वर्ड फाइल है इस वर्ड फाइल को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली रन इट, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है आई होप कि ये वर्ड फाइल जो है आपके सामने ओपन है, ठीक है, ओके। तो अब जब आपने एरर करेक्शन मॉडल रन करना है तो बेसिकली आपने दो तरह की जो है आपने इक्वेशन जो है चेक करनी है। पहली इक्वेशन जो आपने चेक करनी है वो आपने चेक करनी है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो जैसा कि आपको डॉक्टर तहसीन ने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। ये बड़ा डिटेल में जो है उन्होंने हमने डिस्कस किया है कि जनाब के जब हम एरर करेक्शन मॉडल हम रन करते हैं तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में उसको किस तरह चेक करते हैं और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो है उसको किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि जब आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की जो है कंडीशन चेक करेंगे एरर करेक्शन मॉडल की, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपके पास जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका जो है वो आप डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये जो डी है ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, ठीक है। डी ऑफ RMD कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट, देन डी ऑफ RGTP, देन डी ऑफ INT। इसके बाद ये जो एरर करेक्शन टर्म है जिसको हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं ECM के नाम से, ठीक है, इसका जो है हम लैग लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड ECM-1। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर तहसीन जावेद ने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर जो है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में आपके पास ये जो एरर करेक्शन टर्म है जिसको हम यहाँ पर एरर करेक्शन मॉडल कह रहे हैं, इसका जो कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव आ जाता है और वो सिग्निफिकेंट आ जाता है तो इसका मतलब जो है वो ये है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है और आपके आपके जो सीरीज है, ठीक है, या आपके जो जो टाइम सीरीज है ये लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम को रीच कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो एरर करेक्शन टर्म है या जो एरर करेक्शन मॉडल जो है, ठीक है, इसके जो रिजल्ट है इसका कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आता है, इसका कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट नहीं आता, तो उस में जो है वो हम चेक करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मॉडल। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मॉडल चेक करने के लिए उन्होंने आपको जो बात बताई वो ये दैट यू कैन एक्चुअली टेक द लेग्स ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने ये किया है कि हमने जो है वो जो अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन देखें वी हैव टेकन the differences or the differential of
the legs of different independent variables, and we have taken the error correction term or the error correction model, जैसे उसको यहाँ पे कह रहे हैं, we have taken the leg of error correction term as the independent variable. ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे तो हम ये देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो एरर टर्म है उसका कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आ जाता है और उसका कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट आ जाता है, तो उस वक्त में जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहां पर हमारे पास जो एरर करेक्शन टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो जो है वो नेगेटिव नहीं है या मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उस वक्त में जो है वो हमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन जो इक्वेशन है उसको रन करना होगा। तो पहले जो है हम शॉर्ट टर्म इक्वेशन को रन करना है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इक्वेशन रन कर लेंगे। अब ये मैंने जो है वो इक्वेशन में जो है वो कॉपी, ठीक है, इक्वेशन कॉपी करने के बाद जो है मैं जो है वो जनाब ईव्यूज में गया और पहले मैंने ईव्यूज सॉफ्टवेयर को मैं शेयर करूं दोबारा, and then use, ठीक है, तो क्विक एंड ऐसा क्वेश्चन एंड हियर आई विल टाइप दिस, ठीक है, ये मेरे पास जो है शॉर्ट टर्म निकल गई, ठीक है, ऐसा क्या देखते हैं, ये जो आपके पास ECM बस नहीं है, ECM जो लैग वैल्यू, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है बल्कि ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और एक अदर भी कह सकते हैं कि जनाब के लॉन्ग रन में दिस सीरीज विल कन्वर्ज एंड इट विल रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो दूसरी लॉन्ग रन इक्वेशन है, ठीक है, उसको रन ही उस सूरत में देंगे कि जब हमारे पास जो है ये जो टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव या सिग्निफिकेंट जो है वो ना आए, ठीक है। अब जब लॉन्ग रन इक्वेशन को जब रन करेंगे तो लॉन्ग रन इक्वेशन को रन करने के बाद जो है वो अगर आपके पास एरर करेक्शन टर्म है, ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव आ जाता है, उसके फिर तो देन इट विल एक्चुअली प्रूव कि जनाब लॉन्ग रन जो इक्विलिब्रियम है वो एक्सिस्ट करता है और लॉन्ग रन में जो है आपका ये जो शॉक जो है वो आपके मॉडल में जो है वो चेंज आएगा इन द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, इट विल गो अवे एंड द सीरीज विल कन्वर्ज एंड ऑल द वैल्यूज विल बिकम सेम इन द लॉन्ग रन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तमाम स्टेप्स जो है वो आपने देख लिए, ठीक है, अब है वो हम चैप्टर फाइल है, ठीक है, वो मैं शेयर विद यू, ठीक है, और उसमें जो डिफरेंट टेबल्स जो मैंने अभी जनरेट किए, सेम टेबल्स दैट हैव बीन शोन here with slight modification in the steps that I perform, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको स्टेप्स बताए, ठीक है, मैंने बिल्कुल वही स्टेप्स किए हैं कि जो कि आपके जो बुक चैप्टर में परफॉर्म किए गए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन आ रहा है। बट व्हेन यू परफॉर्म दीस स्टेप्स आई वुड एक्चुअली अर्ज यू टू वॉच द वीडियोस दैट आई शोन टू यू, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इसको फॉलो करें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गया जनाब ये जो परफॉर्म किए जा रहे हैं हर स्टेप का पर्पस क्या है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी शेयर विद यू चैप्टर 5। अच्छा जी, अब ये चैप्टर 5 जो है ये इट इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, sir. ओके, अच्छा आप देखें यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फिगर 4.2 इट कैन बी सीन दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ रियल जीडीपी एंड INT आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट as p values for both are 0.000 and 0.000 respectively. The R square is very high, 92%, and the Durbin-Watson stat is very low, 0.0862. As the Durbin-Watson statistics is smaller than the R square, we may have a case of spurious regression, ठीक है। तो इसका मतलब जो हुआ कि रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं हमें क्या बता रहे हैं कि दिस कुड बी स्पूरियस रिग्रेशन। स्पूरियस रिग्रेशन मतलब क्या है कि हमने जिस डेटा के ऊपर वाले रिग्रेशन किया है वो डेटा जो है वो स्टेशनरी नहीं है। जब अगर जो है वो केस है तो उस सूरत में हमको क्या चेक करना पड़ेगा, उस सूरत में हमको चेक करना पड़ेगा कि आपके इंटीग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट। हाउएवर इफ द रेजिडुअल ऑफ दिस रिग्रेशन इज स्टेशनरी इट कंफर्म दैट द सीरीज आर को-इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये वो चीज थी कि जो कि डॉक्टर तहसीन ने जो है अपनी वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि को-इंटीग्रेशन का जो है वो पर्पस क्या है, ठीक है, how we actually when we actually say that the two series are co-integrated. So thus there is a long run relationship between the series and we are able to calculate an error correction model. तो उन्होंने कहा जनाब कि अब अगर जो है वो हम रेजिडुअल्स को चेक करेंगे, रेजिडुअल्स जो है वहाँ जो है वो हमें पता चल जाता है कि आपकी दो टाइम सीरीज जो सीरीज हैं x और मतलब इनफैक्ट द y g and the real GDP and the all the other variables, अगर ये को इंटीग्रेटेड है तो मतलब जो है वो ये कि हम एरर करेक्शन मॉडल जो है वो रन कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया जनाब, then we saved the residual, ठीक है। अब इसकी है वो एक्सप्लेनेशन देख लें, ठीक है। जब आपने रेजिडुअल्स को सेव करने के बाद जब आपने कोलोग्राम रन किया है, ठीक है, तो नंबर 1 व्हाट इज H नॉट। H नॉट मींस सीरीज हैज नो यूनिट टेस्ट, ठीक है, यूनिट रूट। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, द सीरीज हैज अ यूनिट रूट और अल्फा जो है वो जनाब इसकी जो वैल्यू या p वैल्यू जो है वो 0.05। अच्छा जी, अब जब हम फिगर 4.4 पे देखते हैं, ठीक है, फिगर 4.4 आई ना हमारे पास फिगर 4.4 ये, ठीक है, ये वही डायग्राम है कि जो हमने पिछले सेशन में भी जब की थी, ठीक है, establish that whether there is station or not, ठीक है। So if we look at the prob, ये probability column in figure 4.4, we see that the p values are bigger than 0.05 because probability is equal to 0.00 less than 0.05. Therefore, we reject the H naught and accept the H1. H1 क्या है जनाब? The series has a unit root. That means that the series is a unit root and it is not stationary. Okay, fine. Now
The next thing is that हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें डिस्कस किया था कि जो सीरीज स्टेशनरी होती है या स्टेशनरी नहीं होती, उसके दो तरह के जो है वो मेथड जो है हमारे बुक ने जो है डिस्क्राइब किए हुए हैं। एक अपना इनफॉर्मल मेथड है और एक जो है फॉर्मल मेथड है। इनफॉर्मल मेथड में हम ग्राफ जनरेट करते हैं, इसके अलावा हम ग्राफ जनरेट करते हैं इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि सीरीज जो स्टेशनरी है या स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली जो है वो जो फॉर्मल मेथड होता है, फॉर्मल मेथड में हम ऑगमेंटेड डिफरेंट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए सीरीज जो है वो स्टेशनरी है या स्टेशनरी जो है वो नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो कंफ्लिक्ट रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि इनफॉर्मल टेस्ट में कुछ बता रहा होता है और फॉर्मल टेस्ट में कुछ बता रहा होता है, तो उस वक्त में हम जो डिसीजन लेते हैं वो इस बात पर लेते हैं कि फॉर्मल टेस्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है। फॉर्मल टेस्ट में कहता है कि सीरीज स्टेशनरी है, देन वी टेक द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मल टेस्ट एज फाइनल कि यस सीरीज स्टेशनरी। अब हमने जब यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट के जो टेस्ट रन किया, तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। एच नॉट क्या है, सीरीज हैज अ यूनिट रूट एंड इट इज नॉट स्टेशनरी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, H1 क्या है, सीरीज हैज नो यूनिट रूट एंड इट इज स्टेशनरी, ठीक है। तो अब जो अगर फिर 4.4 जिसमें हमने अबंडेंट डिग्री टेस्ट की जो स्टैटिस्टिक्स थी, उसको हम देखें तो वहां पर देखते हैं कि एरिया ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो है -3.819725, ठीक है। और जो पी वैल्यू है वो है 0.0033। 0.0033 is less than 0.05, therefore we will reject the H0 and accept H1, that is the series has no unit root and it is stationary, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अब आपके पास जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन जो है वो आपके पास एस्टैब्लिश हो गई हैं, ठीक है। और अब आप जो है वो अगर आप जो है वो डिटरमाइन करना चाहते हैं अपने डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, देन व्हाट यू विल नीड टू डू, यू विल नीड टू रन अ वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो है कि आप यहाँ पर ओएलएस रन कर सकते थे, लेकिन ओएलएस आप उस सूरत में रन करते हैं कि जब आपके पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक होता। अभी हम जो है यहाँ पर इक्वेशन जो है वो जो चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन आपको नीचे नजर आ गया, रियल मनी डिमांड इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटरेस्ट रेट प्लस यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एक से ज्यादा होते हैं, चीज जो है वो आपस में को इंटीग्रेट होती हैं, तो उस सूरत में हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल या एरर करेक्शन मॉडल जो है रन करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन द एरर करेक्शन मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद जो है या देखेंगे जो आपके पास जो उन्होंने जो डिफरेंट स्टेप्स जो बताए हैं, ये वही स्टेप्स हैं अभी मैंने आपको परफॉर्म करके जो है वो दिखाए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इन्होंने जो क्वेश्चन रन की थी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है शॉर्ट रन की क्वेश्चन जो है वो नहीं दी है, या इन्होंने लॉन्ग रन की क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की क्वेश्चन जो है वो दोनों मेरे साथ जो है मैंने शेयर कर दिए, मैंने रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट दीज रिजल्ट्स, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें जो है वो थोड़ा सा उन्होंने मजीद टेस्ट जो है परफॉर्म किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर तहसीन जावेद ने अपनी वीडियो में जो टेस्ट जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है, एंड इस तरह से जो एस्टैब्लिश शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विल लीड टुवर्ड्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जो उनके इंटरप्रिटेशन, आई थिंक दैट इंटरप्रिटेशन इज एनफ, एंड यू शुड यूज द सेम इंटरप्रिटेशन व्हेन यू जनरेट योर ओन रिजल्ट्स, ठीक है जी। सो अब क्योंकि जिस तरह से जो है अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, ये जितनी भी मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं, the concepts of econometrics, differential econometrics, right? These are not they're quite simple. However, I've tried using all the resources available in my control and to explain the concept in as much detail as possible. So now it's up to you. It's your job to go through these videos, these steps, and repeat them as many times as you wish, okay, in order to gain a comprehensive understanding of various topics that we have discussed today. ठीक है। तो अब ये जो आपका जो फोल्डर है, ठीक है, ये जो V30 का फोल्डर जो मैंने शेयर किया था, आई विल बी शेयरिंग दिस फोल्डर इन ड्रॉपबॉक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नाउ इट विल बी योर टर्न, ओके, टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन टू हैव अ सॉलिड ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट। और इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इस मामले इसके कॉन्सेप्ट्स के रिगार्ड के हमने डिस्कस किया, you can post these queries on the Facebook page that your class ER has created. Once again, I have told you that in the final examination, I will not ask you to run the test yourself, ठीक है, because I think it's something that you know the step you can run the test. आपसे जो मैं पूछूंगा वो पूछूंगा जनाब आपकी जो टेस्ट रिजल्ट जिस तरह से मैंने भी आपको टेस्ट रिजल्ट एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर तहसीन ने आपको टेस्ट रिजल्ट जिस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है बिहाइंड ऑल दीस थिंग्स, दैट विल बी माय मेजर फोकस, ठीक है। ताकि और ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट में वो तो स्टेप्स में जो है फ्यू क्लिक्स के साथ हो जाते हैं, बट यू आर अनएबल टू इंटरप्रेट व्हाट द स्टैटिस्टिक्स टेलिंग यू, दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन इट इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड, ठीक है जी। सो कोई सवाल यहाँ